Hello students, this is the last lecture, most probably the last lecture of the chapter ratio, and we are doing comprehensive questions. Let's proceed with question number 74. Question number 74. From the following information, calculate cost of revenue from operations, and closing inventory. So they need to ask, they are asking net sales, COGS and closing stock. What is given in the question? We'll see that. The first is inventory velocity, stock velocity. मतलब इसे हम कहेंगे होल्डिंग पीरियड. स्टॉक कितनी देर तक हम होल्ड करके रखते हैं जो स्टॉक नहीं बिकता. इट इज़ इन मंथ्स. बिकॉज इट इज़ इन मंथ्स, सो इट वुड बी 12 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. 2 is equal to 12 upon ITR, inventory turnover ratio. That means ITR is 12 by 2, which is equal to 6 months. So stock turnover ratio हमारे पास आ रहा है 6 months. Gross profit ratio is 20%, which is nothing but 60,000. Gross profit is 20%. तो 20% किसका होगा? सेल्स का. हमने आगे भी काफ़ी बार सॉल्व किया. आप ऐसे भी कर सकते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. 20 इज इक्वल टू 60,000 by net sales into 100. So 20% on sales. So 60,000 is equal to 20% of sales. So 60,000 into 100 by 20 is equal to sales 5 times. हमारी सेल्स की वैल्यू आ गई है 3 lakh. We got sales as 3 lakh. Closing inventory was, okay, we got 3 lakh and gross profit, so we can definitely compute COGS. COGS is equal to net sales minus gross profit. 3 lakh minus gross profit is 60,000 is equal to 2,40,000. So gross profit is 60, net sales is 3 lakh and COGS is 240. We have ITR 6 times. We have inventory turnover ratio 6 times. What is inventory turnover ratio? COGS upon average stock. क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में दो रेशियोज गिवन है. एक होल्डिंग पीरियड और एक GP रेशो. उससे हम वैल्यूज कंप्यूट कर रहे हैं. ITR is 6 times, COGS is 240, that is average stock. We'll get average stock is 240 by 6. That would be rupee 40,000, 40,000 रुपये. What technically average stock is? Average stock is opening stock plus closing stock divided by 2. We strongly recommend कि आप स्टॉक की जगह इन्वेंट्रीज लिखें, COGS की जगह कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखें, सेल्स की जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखें. So 40,000 is equal to closing inventory is 5,000 in excess of opening. Opening is X, closing is X plus 5,000. Opening stock X है, closing stock है X plus 5,000. 5,000 उससे ज़्यादा. Divided by 2, cross multiply, will get 80,000. 2X plus 5,000. 2X is equal to 75,000. X is equal to 75,000 by 2, which is 37,500. So what we get is opening stock. The value of opening stock is X, 37,500, and closing stock is X plus 5,000, which is 37,500 plus 5,000,
that would be rupee 42,500. What they have asked? They have asked compute cost of revenue from operations. So this is your answer number 1. Second, revenue from operations, sales. This is answer number 2. Third, closing inventory. This is answer number 3. Clear everyone? So take your time, take 1 minute. I know आपने साथ साथ note down कर लिया है, but still I am giving you 1 minute to complete this sum. Speed up. Thirty more seconds. Moving to question number 73. Moving to question 73. The following information is provided to you: receivable turnover ratio, stock turnover ratio, current ratio, working capital turnover ratio. So many ratios we have. Based on the information, calculate any two ratios. Any two. 3 चीज़ें पूछी हैं, कोई 2 निकालनी है. ऑब्वियसली हम तो तीनों ही कंप्यूट करेंगे. एग्जाम में आप कोई 2 कंप्यूट कर सकते हैं. कौन से 2 वो तो सम करके पता चलेगा. जब 2 सॉल्व लग जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे. हम शुरू कर रहे हैं जैसा क्वेश्चन में मेंशन है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. Receivable turnover ratio, the formula is net credit sales upon average receivables. So 8 is equal to, क्वेश्चन में एवरेज नेट क्रेडिट सेल्स नहीं गिवन, बट एवरेज रिसीवेबल्स गिवन है. एवरेज रिसीवेबल्स हैं 1,80,000. एवरेज रिसीवेबल्स गिवन इन द क्वेश्चन इज 1,80,000. क्रॉस मल्टीप्लाई. इन दैट केस विल गेट नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू रुपीज 14,400,000. 1,80,000 into 8 is 14,40,000. Next we have is stock turnover ratio. Inventory turnover ratio. The formula is COGS upon average stock. That would be 8 is equal to, COGS क्वेश्चन में नहीं गिवन, एवरेज स्टॉक क्वेश्चन में नहीं गिवन. तो आगे बढ़ते हैं. करंट रेशियो. करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. 3 is equal to, क्वेश्चन में करंट एसेट्स गिवन नहीं है, करंट लाइबिलिटीज भी गिवन नहीं है. सो वी कैन नॉट सॉल्व इट बाय नाउ. अभी के लिए पॉसिबल नहीं है. आगे बढ़ते हैं. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यूज्ड हो चुके हैं. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज नेट सेल्स upon working capital. Working capital turnover ratio is 8 times. 8 is equal to, net sales हमारे पास नहीं है, working capital हमारे पास नहीं है. तो यहाँ पर आके अब बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा जी, क्वेश्चन गलत है.
ऐसा कुछ भी नहीं है. They are just checking your patience. फर्स्ट नहीं सॉल्व हुआ, नो प्रॉब्लम. सेकंड नहीं सॉल्व हुआ, नो प्रॉब्लम. थर्ड नहीं सॉल्व हुआ, नो प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. सो वी नो दैट कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू नेट सेल्स या टोटल सेल्स. क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं है तो नेट सेल्स और टोटल सेल्स का मतलब एक ही है. कैश इज 25% ऑफ टोटल. टोटल को हम लेते हैं x, क्रेडिट सेल्स इज 14,40,000 एंड कैश सेल इज 25% ऑफ x. आई होप यू गॉट इट. कैश सेल्स में क्रेडिट सेल्स प्लस करेंगे तो नेट सेल्स आएगा. बेसिकली नेट और टोटल सेल्स में कोई फर्क नहीं है इस क्वेश्चन में क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं है. नेट सेल्स को मैंने x ले लिया. क्रेडिट सेल्स हमने सॉल्व की हुई है 14,40,000 और कैश सेल्स हो गई हैं 25% ऑफ टोटल सेल्स, दैट इज 25% ऑफ x. लेट्स सॉल्व इट. दिस इज 25, so this is 75. 14,14,000 divided by 75. 19,20,000. Net sales is equal to 19,20,000. 1/4, 5/4. परफेक्ट. चलिए हमारे पास इस टाइम सॉल्व करके आ गई है नेट सेल्स. तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 19,20,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, जिससे हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 19,20,000 होल डिवाइडेड बाय 8. 2,40,000, 2,40,000. So working capital we get is 2,40,000. What next? Gross profit ratio, GP ratio. Gross profit ratio is 33/1/3. 33/1/3, that would be 1/3 on sales. Gross profit ratio is 1/3 on sales, or gross profit is 1/3 on sales, or you can do gross profit ratio is gross profit upon net sales into 100. तो सॉल्व करेंगे 33 1/3%, 1/3 होता है जैसे हमने पहले भी बताया है. मिक्स नंबर को अगर आप ऐसे रखेंगे फ्रैक्शन में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पॉइंट्स में कैलकुलेशन कम रहेंगी. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी 1/3 ऑफ 19,20,000. यस, 19,20,000 का 1/3. सो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 1/3 ऑफ 1920, दैट वुड बी 6,40,000. Gross profit is 6,40,000. What about COGS? Net sales minus gross profit, that would be 6,40,000 is gross profit and net sales is 19,20,000. And we'll get COGS as 19,20,000 minus 6,40,000. 12,80,000, 12,80,000 आ गया COGS. काफ़ी बड़ी अमाउंट्स आ रही हैं. COGS हमारा यहाँ पे काम आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में. COGS इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में काम आएगा. सो 12,80,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक is stock turnover ratio. So we'll get average stock as
12,80,000 divided by 8, 1,60,000. So we'll get average stock is 1,60,000. Still current ratio भी solve नहीं हुई है, but yes, we do get the average stock. Now we'll move to average stock now. What is average stock? Opening stock plus closing stock whole divided by 2, 1,60,000. 1,60,000 is equal to closing inventory 10,000 in excess of opening inventory. Closing 10,000 ज़्यादा है opening से, तो opening को ले लेते हैं x, closing को x plus 10,000 whole divided by 2. So 3,20,000 is equal to 2x plus 10. X is equal to 3,10,000 divided by x divided by 2 rather. 1,55,000. X is 155, so opening stock is equal to rupee 155 and closing stock is equal to plus 10,000, 10,000 उससे ज़्यादा 165, तभी एवरेज 160 आया ना. अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है. क्वेश्चन में पूछा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स 19,20,000. फिर उन्होंने पूछा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट मीन्स COGS 12,80,000. फिर क्लोजिंग स्टॉक विच इज़ 1,65,000. क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बट ये सॉल्व नहीं हुआ, तो ये था C फैक्टर, कंफ्यूजन फैक्टर, नॉट एप्लीकेबल. ना ही हम इसे सॉल्व कर पाए हैं, ना ही ये सॉल्व हो पाएगा, और इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि जो चीज़ पूछी है वो तो सब आ चुकी है. टेक योर 1.5 minute एंड कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 73. Okay, now let's move to question number 71. Question number 71. Question number 71. A company has inventory of 1,80,000, trade receivables of 120, inventory turnover ratio is 6 times. The gross profit margin of company is 10%, 10% on sales, and credit revenue from operation is 20% of total sales. Calculate average collection period. Average collection period is days in a year divided by debtor turnover ratio. और debtor turnover ratio अब हमें compute करनी पड़ेगी. We need to compute trade receivables turnover ratio. Collection period is equal to 360 upon receivable turnover ratio. 365 होते हैं बट क्वेश्चन में लिखे 360 डेज कंसीडर करो.
जस्ट कैलकुलेशन इजी रहेगी और कोई रीज़न नहीं है. हाउ टू फाइंड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नाउ. Receivable turnover ratio is equal to net credit sales upon average receivables. Now as the question says, a company has an inventory of 1820, trade receivables of 120. अब ये ट्रेड रिसीवेबल्स कौन से हैं, ओपनिंग के क्लोजिंग कुछ भी मेंशन नहीं है, दैट मीन्स ये एवरेज है. यही क्लोजिंग है, यही ओपनिंग है और यही एवरेज है. आगे सम सॉल्वेबल नहीं है अभी के लिए. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स. Inventory turnover ratio is COGS upon average stock or average inventories. As the question says, average inventory turnover ratio is 6 times. 6 is equal to COGS is not given, so COGS upon average stock. Average stock is 180. 1,80,000. So we'll get 1,80,000 multiplied by 6. COGS is 10,80,000. 10,80,000 is COGS. The gross profit margin is 10%. Gross profit is 10%. 10% on sales. Gross profit is 10% on sales. What is COGS? Net sales minus gross profit. COGS is equal to net sales minus gross profit. 10,80,000, 10,80,000 is X minus gross profit. How much is gross profit? 10% on sales, 10% of X. So 10,80,000 into 100 by 90 is equal to X. And what is X? Net sales. ये चैप्टर करते वक्त कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, यू जस्ट सॉल्व इट. जो सॉल्व हो सकता है सॉल्व कीजिए. विल गेट नेट सेल्स 12 लाख, 12 लाख की सेल्स हैं, 10,80,000 का COGS है, जिससे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 20% ऑफ टोटल सेल्स. क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 20% of total sales or net sales. Sales return is not there, so one and the same thing. 20% of 12 lakh, 2,40,000. Credit sales we got as 2,40,000. Now because we got the credit sales, now we can put it here. यहाँ पे पुट किया जा सकता है 2,40,000 by 120 which is 2 times. टर्नओवर रेशियो है तो टाइम्स में आएगी. Now we can put it there 360 by 2 which is 180 days. मतलब 6 महीने, 6 महीने के 2 सीजन लगते हैं हमारे बिजनेस में. दिस इज व्हाट करेक्शन पीरियड. हम 6 महीने का क्रेडिट देते हैं, 6 महीने बाद पैसे हमें रिसीव होते हैं. स्पीड अप, कंप्लीट द सम, 1 minute, नॉट मोर देन दैट.
Okay, moving to question number 70. Cost of revenue from operations COGS 150, operating expenses 60, 150 plus 60 210. Operating cost is COGS plus operating expenses. So 210 divided by net sales, 250 into 100 is operating ratio. Direct formula self. Operating cost by net sales into 100. परसेंटेज में आंसर रहेगा. Question number 69. Question number 69. From the following information, calculate any two of the following ratios. कोई दो ratios निकालनी है. So I'll be solving B and D, जो मुझे लगता है ज़्यादा difficult हो सकती है. I'll be solving B and D. A और C आप अपने आप सॉल्व करेंगे. A and C self. Debt equity ratio is debt upon equity, and working capital turnover ratio is net sales upon working capital, which is CA minus CL, current assets minus current liabilities. Now B part, interest coverage ratio. The formula for interest coverage ratio is earning before interest and tax upon interest. Profits before interest and tax divided by interest. और क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख, आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट. प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें नहीं पता, जो भी होगा, माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट पे होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर 2 लाख का 9%. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड 2 लाख, उसका 9% इंटरेस्ट है. मतलब बैंक से हमने 2 लाख का लोन लिया, उस पर 9% इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट हो गया 18,000, 18,000. तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स माइनस टैक्स. टैक्स भी है 50%, इसका 50% माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 1 लाख. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट इज 1 लाख. दिस इज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो क्वेश्चन में गिवन है. हमें चाहिए ये, गिवन है ये. वी नीड दिस, वी हैव दिस. सो से दिस इज x. x माइनस 50% of x is 1 lakh. So we'll get x is 2 lakh. हमारे पास x आ गया 2 lakh. This is 2 lakh. 2 lakh minus 50%. 2 lakh का 50% is 1 lakh. Rest is 1 lakh. Now say this is y. Y minus 18,000 is 2 lakh. That would be y is equal to 2 lakh plus 18,000, which is 2 lakh 18,000. हमने 2,18,000 रुपये कमाए, 10,000 रुपये इंटरेस्ट दिया, 18,000 रुपये इंटरेस्ट दिया, रह गए 2 लाख. फिर 50% उस पर टैक्स दिया, रह गया 1 लाख. 1 लाख में से कुछ डिविडेंड दिया नहीं है, और ये रिजर्व सरप्लस में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड है ही नहीं इस क्वेश्चन में. ये रिजर्व सरप्लस में ऐड हो जाएगा, मतलब विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी. क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो पूछी है, तो ये 1 लाख प्लस होगा. दिस 1 लाख विल गो इन इक्विटी रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं गिवन. इसे 1 लाख में से कुछ डिविडेंड हमने नहीं दिया, सारा का सारा प्रॉफिट्स में चला गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ट्रांसफर हो गया. चलिए, हमें तो अभी 2,18,000 चाहिए था,
2,18,000 divided by 18,000 is equal to 2,18,000 divided by 18 is 12.11 times or 12.11:1. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक ऐसी रेशियो है जो रेशियो में भी रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और टाइम्स में भी रख सकते हैं. स्पीड अप कंप्लीट कीजिए, देन विल मूव टू डी पार्ट. फिर हम इसके डी पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं. स्पीड अप. Moving to D part. Return on investment, return on capital employed. Return on capital employed, also known as ROI, return on investment. It is EBIT upon capital employed. Into 100. EBIT, profits before interest and tax, 2,18,000, 2,18,000 divided by capital employed. What is capital employed? Debt plus equity or fixed assets plus current assets minus current liabilities. We can apply both. I'll be using debt plus equity. Capital employed is equal to equity plus debt. Equity में we have share capital plus reserves and surplus plus debt. In share capital we have 5,50,000. जनरल रिजर्व 50, 1 लाख का प्रॉफिट पैट. वैसे यहाँ पे आता है प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड, बट डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं है तो आफ्टर टैक्स ही आफ्टर डिविडेंड हो गया. प्लस डेट, लॉन्ग टर्म डेट इज 2 लाख. 7 लाख प्लस 2 लाख is 9 lakh. Capital employed is 9 lakh. काफ़ी बड़ी अमाउंट कमाई जा रही है. 2,18,000 9 लाख पर 24.22%. 24.22%. स्पीड अप कंप्लीट कीजिए. Question number 69. Moving to next question. 69 के 2 पार्ट मैंने किए हैं, 2 आप सेल्फ अपने आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 66. Question number
66. This is the last question for this lecture. From the following information, A. Return on investment, B. Total asset to debt ratio. सबसे पहले ROI निकाल रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. एग्जाम में पूरा लिखेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. हमें क्वेश्चन डायरेक्टली गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड. अच्छा, अगर ये आफ्टर गिवन होता तो हम बिफोर निकालते, गिव मिस, तो हम बिफोर निकालते. कैसे निकालते ये देखिए, ये हमने निकाला है. अगर हमें आफ्टर गिवन होता तो ऐसे बिफोर निकालते. अब क्वेश्चन में बिफोर ही गिवन है तो दैट इज कूल. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड 14,50,000 14,50,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड नॉट गिवन. लेट्स कंप्यूट. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी. नहीं लग सकता क्योंकि इक्विटी नहीं गिवन, शेयर कैपिटल नहीं गिवन. तो ये नहीं सोचना शेयर कैपिटल जीरो हो जाएगी. अगर किसी कंपनी की शेयर कैपिटल ही जीरो है तो वो कंपनी बन ही नहीं सकती. So share capital cannot be zero, so we'll apply non-current assets plus current assets minus current liability. Non-current assets, fixed assets 75 lakh. Current assets 40 lakh. Current liabilities 27 lakh. डिवेंचर्स नहीं आएंगे, इट्स अ नॉन करंट डेट, लॉन्ग टर्म डेट. पैट रिजर्व सरप्लस में, इक्विटी में. सो व्हाट वी गेट इज 75 लाख प्लस 40 लाख, 1 crore 15 lakh minus 27 lakh is 88 lakh. Quite a big amount, but for companies it's like in thousands, lakhs, crores. So we get capital employed as 88 lakh. And the net answer is 14,50,000 divided by 88 lakh into 100. 16.47%. ये भी काफ़ी अच्छा ही है क्योंकि FD पर कुछ 4% रेट मिलता है, तो दिस इज तो लाइक 16%. नेक्स्ट B. Total asset to debt ratio. Total assets to debt ratio. The formula would be total assets upon debt. There are two types of assets: non-current assets plus current assets. That would be 75 lakh plus 40 lakh, which is equal to 1 crore 15 lakh. Debt. What is debt? Long-term debt. 12% debentures, non-current liabilities, 80 lakh. So the net answer would be 1 crore 15 lakh by 80 lakh. 1 crore 15 lakh by 80 lakh is equal to 1.544 times, no, is to 1, because it's a long term solvency ratio. 1 minute, complete the sum, speed up.
कंप्लीट कीजिए। Speed up. ओके, क्वेश्चन 65 आप अपने आप करेंगे सेल्फ। हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें गिवन है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर 65th क्वेश्चन में देखेंगे गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको बिफोर बनाएंगे तो x माइनस 40% ऑफ x इज 9 लाख, फिर उसमें इंटरेस्ट प्लस करेंगे डिबेंचर्स का, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। सो 65 यू विल डू सेल्फ योरसेल्फ। हमारे कुछ 3-4 क्वेश्चन पढ़े हैं बट बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं वो अगले लेक्चर की तरफ ही लेके जा रहा हूँ। करने के लिए मैं चारों क्वेश्चन बोलूँगा, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, दैट इज़ योर होमवर्क, चैप्टर खत्म। बट आई नो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, सो दोज क्वेश्चंस आई विल बी टीचिंग इन द लास्ट, दैट वुड बी द 13th लेक्चर। फॉर टुडे जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए हैं प्रैक्टिस के लिए वो आपने करने हैं। 2 लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज गिवन है, उसको आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे। एट द एंड आफ्टर सॉल्व लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एफिशिएंसी, वी हैव प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, उसे आप एक बार अच्छी तरह जरूर पढ़ लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।